the most ancient sector, that is your primary sector. Primary sector is one of the ancient sector. Ancient sector, because from early time people, when they left nomadic life, they became a settled person. They started their life by settling on river banks. They started settling there, okay? And finally what happened? They started living there and producing food grains. They had started their life. Clear? So in that sector you have got one of the agricultural activity. Clear? That activity is the ancient activity and it happens so. Yes, stand up. है? क्या चीज? 1950 से 1960 तक। कितना पुराना हो सकता है सर ये? हाँ, तो ये जो हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस है, all these historical changes, ठीक है, that we are discussing on the basis of economics. We are not going to make analysis of that type. ठीक है, हम हिस्टोरिकल पॉइंट्स इसको डिस्कस करेंगे कि पहले हमारा जो एंशियंट टाइम में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थी, they were traditional. People had used animal muscles. ठीक है, as soon as development took place, we are using equipments. ठीक है, agricultural equipments are used under modern farming. We are using HYV seeds and perfect, you can say, advanced irrigation system. So it developed, means our primary sector from 1971 to 72. ठीक है, if its total income was 60, you can say 6 lakh crore during 1971 and 72. And now it has increased and it came up to, you can say, 12 or 15 lakh के आसपास, करोड़ के आसपास आ गया है. तो इसके पीछे रीजन क्या है? Because of more production from same land. Again, we have done, multiple cropping, and along with that we have used, HYV seeds, and we brought green revolution. ठीक है, and it gave up production. We have used latest technology in the sector of agricultural activities. So the historical changes took place. It is seen here that the production, when it was very low at early time when India became independent, we had very low quality fertilizers, understand, and our seeds, they were of poor quality, and per hectare production was 2 quintal or 3 quintal of wheat or rice, right? But after 10 years or 20 years, this production increased and it became 4 times or 5 times, right? It was the result of green revolution and what we have used, the modern farming method. Clear? So this is a historical change in primary sector. Clear? Let us take the case of secondary sector. Okay? In secondary sector, earlier people had to do only work in workshops. ठीक है, they had to do their traditional work such like iron smith, ठीक है, carpenters, weavers. They have to produce all their goods by their hand. Again, weavers, they had to use hand loom, isn't it? They had to weave clothes in their village area, in their town area. Clear? And they had to supply these products to various family members in market at high rate, isn't it? And demand was high, production was less. Clear? When India was independent at that time. But after few decades, what we had seen, there was cotton mills came in India, isn't it? And these cotton mills, they made mass production. Okay? You can say they had produced a huge, quantity in a small interval of time. That's why its final value decreased and people could get them at cheap rate because of mass production. ठीक है?
machine made products became cheaper, good finishing. It means people are able to wear clothes at cheap rate in comparison to khadi clothes. Khadi clothes are still costly, isn't it? Because they are man-made. They are, people use, spinning wheel. They are making their own thread. They are running their own hand tool. That's why these clothes are coming at high rate, isn't it? So this is a change in our manufacturing sector as well. Machines were of poor quality, local quality. Now we have sophisticated machines. Okay, they are electronic run machines. They are, controlled by remote. Now many machines, they are remote controlled. NTPC का जो बॉयलर है वो रिमोट से कंट्रोल होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, एक ऑपरेटर होता था, जाके हैंडल घुमाता था, तब जाकर के उसका बॉयलर का जो है डायरेक्शन टिल्ट होता था, या चाहे जो भी करते थे, ठीक है। अब सब रिमोट से, कंप्यूटर पे वहीं पे बैठे माउस लेके वहीं से क्लिक कर दिया, ठीक है। आपका जो है वो उसका इंक्लाइनेशन चेंज करना था, चेंज हो गया। हमारे मिसाइल्स हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, उसका काउंट डाउन जब शुरू होता है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वो हमारा मिसाइल जो है लॉन्च होता है। वहाँ कोई जाके जलाने थोड़ी जाता है उसका फ्यूल, है कि नहीं। यहीं से ही क्लिक करते हैं तो एक स्पार्क निकलता है, एंड दैट स्पार्क कैचेस फायर, है कि नहीं, एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी एंड योर रॉकेट लिफ्ट, है कि नहीं। तो ये क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर का ही एक बहुत बड़ा क्या है, एक रिजल्ट है कि नहीं। तो दिस इज नो डाउट हिस्टोरिकल चेंज, एंड मेनी पीपल who were working in primary sector, because of low work, disguised unemployment, they had to migrate in city area, and they joined manufacturing works, isn't it? They had joined factories, because secondary sector is promising sectors of production and employment. It provides production and employment both, ठीक है। एज मच एज फैक्ट्रीज आर सेटअप, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। मल्टीनेशनल कंपनीज आर कमिंग, दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, isn't it? And we are getting employed, and we are improving our per day income, ठीक है। Our income is improved in secondary sector. It is because of historical changes, है कि नहीं। We have used innovative technology, है कि नहीं। We are using mass production method that was developed by Sir Henry Ford. ये हिस्ट्री का एक चैप्टर था, ठीक है, जो आपके कोर्स से इस बार कट गया है। नहीं तो उसको चैप्टर को आप पढ़ते तो आपके दिमाग में एक रेवोल्यूशन आया होगा, ठीक है, कैसे मास प्रोडक्शन हुआ। सर हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन मेथड से, ठीक है, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि फोर्ड इंजन, ठीक है, उन्होंने शो कर दिया कि पूरी दुनिया में एक समय ऐसा था कि जर्मनी का उनकी जो जर्मनी की कार थी उसको उसने फेल कर दिया, हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन करके, ठीक है। और इसी फोर्ड इंजन ने उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया, एक बार तो लार्ज स्केल में सेल हुआ। लेकिन सर हेनरी ने एक मिस्टेक क्या किया कि जितना प्रॉफिट आया उनका, फिर से उन्होंने कार मैन्युफैक्चर कर दिया। अब ये बताइए कि जिसने एक बार एक कार खरीद लिया तो रोज कार खरीदता फिरेगा? बोलो, रोज तो नहीं कार खरीदेगा, क्लियर। तो व्हाट विल हैपन, कहाँ पे जाए, राइट। तो ये क्या होगा, ही विल नॉट परचेज डेली। तभी हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था। यूएसए का जो ग्रेट डिप्रेशन था ये सर हेनरी फोर्ड की भी देन थी, ठीक है। अमेरिका से पैसा पर्कुलेट ही नहीं हो रहा था, सारे अमेरिकन बैंक्स में चले गए थे और उसी टाइम वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। अमेरिकन बैंक्स ने जितने भी जो है डेप्ट देना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर हम लोग लोन अगर सैंक्शन कर देंगे तो रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस, दे आर डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया और ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, अंडरस्टैंड। ये सब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्लियर। सो दे आर क्रिएटिंग दीज रीजंस, राइट। तो इसके बाद आपकी बारी आती है
टर्सरी सेक्टर का भी डिस्कशन कर लेते हैं, है कि नहीं? वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स टर्सरी सेक्टर? मेनी पीपल they left primary and secondary sector and they have joined tertiary sector because it is innovative place. ठीक है, एक नया प्लेस है. आजकल की जो जनरेशन है वो कभी भी ट्रेडिशनल वर्क में नहीं आना चाहती. अगर मम्मी पापा टीचर है तो बच्चे कहेंगे हम टीचर नहीं बनेंगे, सीधे से कहते हैं. मम्मी पापा आर्मी में है तो बच्चे कहेंगे हम आर्मी में नहीं जाएंगे, है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव डेवलप्ड सच टाइप ऑफ आइडिया, है ना? तो इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है हु आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज, वो भी कहेगा हमारा बेटा फैक्ट्री वर्कर नहीं बनेगा, इसको हम डीएम बनाएंगे, तहसीलदार बनाएंगे, कलेक्ट्रेट बनाएंगे, है कि नहीं? तो मतलब जो है कुछ भी कलेक्टर बनाएंगे, राइट? तो व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑल दीज पीपल, राइट? ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, ये क्या है कि ये जो हमारे जो नए सेक्टर जनरेट हो रहे हैं टर्सरी सेक्टर में, दे आर मोर अट्रैक्टिव, इनोवेटिव, ठीक है? और लड़कों के मतलब जनरेशन को सूट कर रहे हैं. दैट्स वाई पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स योर टर्सरी सेक्टर. और ये सेक्टर आज एक लार्ज पार्ट बन गया है. अभी किसी बच्चे से पूछो अगर उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो ही विल से पापा आई विल बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीधे यही कहेगा, है कि नहीं? या यही सब कहेगा कि हम जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करेंगे, ठीक है? या क्या कहते हैं हैकर बनेंगे, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें जो है, लिसन, वो अलग चीज़ है. हम जिसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा टर्सरी सेक्टर, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? टर्सरी सेक्टर में लोगों का जो है जॉब बढ़ने के पीछे मेन रीज़न क्या है टर्सरी सेक्टर में? क्योंकि लोग क्या हैं कि टर्सरी सेक्टर इनकम बढ़ने की वजह से सर्विसेज बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और जब सर्विसेज बढ़ रहे हैं तो उसको सर्विस देने वाला भी चाहिए. तो सर्विस देने वाले जो हैं वो आजकल की जनरेशन में से जनरेट हो रहे हैं, है कि नहीं? पुराने लोग जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी ये सब करेंगे. कोई पिज्ज़ा बांटने थोड़ी जाएगा, पांडा पिज्ज़ा है, फ़ोन करोगे तुरंत मोटरसाइकिल लेके पहुँच जाएगा. दिस इज़ अ सर्विस, है कि नहीं? तो ये सर्विस देने के लिए कौन सर्विस दे रहा है? कोई यंग जनरेशन. कोई आदमी सरकारी नौकरी वाला हाइडल का कोई इंजीनियर थोड़ी मोटरसाइकिल लेके पिज्ज़ा बांटेगा, क्योंकि उसको नहीं पसंद है ये. कोई प्राइमरी टीचर से कह दो कि आप पिज़्ज़ा की जो है जॉब खाली पड़ी है पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूटर की, ज्वाइन कर लीजिए, कहेगा क्यों नहीं करेंगे. लेकिन जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के लिए इनोवेटिव चीज़ है, तो कहेगा नहीं हम करेंगे. हाँ वही चीज़, है कि नहीं? तो वो भी कोई सरकारी नौकरी छोड़ के तो नहीं करेगा पहली बात, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है कि नहीं? लेकिन जो यंग जनरेशन है देख रहा है कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, सो दे विल डू, है कि नहीं? एनीवे लेट अस डिस्कस. ये तो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं. वी हैव सीन द मेन फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल, बट नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर your primary, secondary and tertiary sector from 1971-72 to 2011-12 या किसी की बुक में 13-14 बना है, ठीक है? 13-14 दिया और एक पुरानी बुक है जिसमें 11-12 भी दिया था. तो अगर हम इसका ग्राफिकल स्टडी करें, ठीक है, if we study them graphically, तो what we will see, let us see. ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है and this is your income in crores. This is rupees in crores. ये आपका 0 है, ये आपका 5 लाख है, ये आपका 10 लाख है, ये आपका 15 लाख है, 20, 25 ये सब लाख में है, 30, 35 लाख, 40, 45 लाख और लास्ट में हम लोग मान लेते हैं 50 लाख. ओके, इट इज इन मिलियन, ठीक है? लाख, मिलियन, करोड़, ठीक है? या खाली करोड़ ले लीजिए, ठीक है? तो अगर हम 71 और किसका दिया इसमें 73, 74 का जो नई बुक है उसमें 1973, 74 का दिया है, ठीक है? तो इसमें लुक हियर, कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड.
तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसका बैंड चौड़ा है, दिस इज प्राइमरी, राइट। और जो हमारा सेकेंडरी है थोड़ा सा कम है, क्लियर। और जो टर्सरी है प्राइमरी से कम है लेकिन सेकेंडरी से ज्यादा है, ओके। दिस इज टर्सरी एंड दिस इज सेकेंडरी, व्हाटएवर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसके बाद जब आप 13-14 में आते हो, ठीक है, हाउ मेनी इयर्स पास? 40 अप्रॉक्स, हाँ अप्रॉक्स 26 और 13 अप्रॉक्स 40। 2013-14 की बात कर रहे हैं, 2013 एंड, ठीक है। तो यहाँ अब आपका प्राइमरी सेक्टर राइज होगा, है कि नहीं, और सेकेंडरी और राइज होगा, ठीक, और टर्सरी और होगा। ज्यादा मैंने कर दिया, इसको और कम कर दें, और ये सबसे ज्यादा होगा, टर्सरी सेकेंडरी, तो डेफिनेटली देयर इज डेवलपमेंट, है कि नहीं। वी हैव सीन हाउ मच जीडीपी केम, चलो बहुत कम हो गया सर, बहुत कम। आई एम टॉकिंग अबाउट जीडीपी कम हो गया ज्यादा हो गया, नॉट मैटर। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 13 एंड 14, किसमें सर पूरे का जीडीपी क्या होता है? Gross domestic product is sum of final values in all three sectors, तो 50 लाख हुआ, ठीक है। टोटल सम हमारा क्या हुआ? 50 लाख हुआ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपको टॉप में 50 तक दिया, ठीक है। ऐसी ये केस स्टडी में आएगा एग्जाम में, ठीक है। पर आपके पास ग्राफ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास, क्लियर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए साइलेंट, हाउ मच परसेंट द वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज्ड, अगर ये पूछे कितना परसेंट ये वैल्यू इंक्रीज हुआ, हाउ विल यू कैलकुलेट। तो अगर हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 15 लाख, और यहाँ प्राइमरी का हम मान लेते हैं 5, ठीक है। तो डेफिनेटली 15 लाख माइनस 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, हाउ मच इट विल कम? 10 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो 200% आपका राइज, 200%, ठीक है। हाँ वो परसेंट में तो डबल ट्रिपल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। 100 में 200 ये मतलब नहीं है, कुल मिला करके इट इंक्रीज डबल और ट्रिपल, ठीक है। वो डिपेंड क्या थी, आप कभी देखे नहीं थे क्या 200%? 100% होता है, लेकिन कहीं कहीं पे जब 100% से भी ज्यादा हो जाता है 101%, यहाँ तक लोग रहते हैं, कहने का मतलब दैट हैज बीन डबल, राइट, क्योंकि वो बढ़ा हुआ है ना, घटा थोड़ी है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो ये सारी चीजें हियर वी हैव वाच्ड tertiary sector. Here question comes, why tertiary sector increase more? ठीक है, you have got many reasons, ठीक है। सबसे बड़ी चीज इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा यू वांट सर्विसेज, है कि नहीं। जब आप 50,000 रुपये महीना कमाएंगे तो आप तब आप चाहेंगे कि मेरे घर बैठे ही मेरा मोबाइल रिचार्ज हो जाए, है कि नहीं। डायरेक्ट उसको फोन कर देंगे वो रिचार्ज कर देगा, वो तो खैर हो ही गया है, लेकिन बात बता रहे हैं, है कि नहीं। साइलेंट, हाँ
और इसके अलावा यू वांट ऑनलाइन सर्विसेज अमेजोन से, घर बैठे ही आप चाहेंगे हमारे घर पे दे जाए, है कि नहीं? ये सर्विसेज बढ़े क्योंकि हमारी इनकम बढ़े। कौन है जोर जोर से बोल रहा है? यस, हाँ। So we are talking about why tertiary sector is increasing, why the contribution of tertiary sector in GDP is increasing, right? This is the main point. Clear? So in this manner we can say that there is many reasons. ठीक है, एक तो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप्ड, ठीक है, हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किया, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब हमें सर्विसेज चाहिए, है कि नहीं? वी नीड द सर्विसेज ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, है कि नहीं? वी नीड किसान पोर्टल। किसान पोर्टल होता है ना, जिसपे क्या कहते हैं, किसान सम्मान निधि भी बहुत छोटे फार्मर्स को मिल रहा है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट दे आर प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन वेरियस थिंग्स। ये आप सर्विसेज आपको चाहिए। अब यू वांट टू चेक योर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, आपका जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी आपको चेक करनी है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? सो वी कैन से दैट दीज आर the reason why people are attracted towards tertiary sector। लोग एग्रीकल्चरल वर्क, जितने भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है, दे लीव एग्रीकल्चरल वर्क एंड दे ज्वाइन दिस थिंग। ओके, सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट ऑल दीज पीपल दे आर डूइंग सो। उसके बाद क्या है हमारा तीसरा, इनकम लेवल राइजेज, अभी मैंने बताया, ठीक है, एंड फोर्थ क्या, पास्ट डिकेड here new services such those based on information and communication technology came, है कि नहीं? information and communication technology rise, ठीक है, and we are based on internet services। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब चैनल्स बना के पैसा कमाना चाहते हैं, है कि नहीं? ये भी सर्विसेज हैं, राइट? दे आर अर्निंग, तो इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव जॉब, है कि नहीं? लोग जो है क्या कहते हैं, दे आर सेलिंग देयर गुड्स ऑन दीज थिंग्स। क्लियर? हाँ, so you have seen many people in YouTube channel, they are earning। इसका एक कंडीशन होता है कि व्यूज होने चाहिए इतने सब्सक्राइबर, इतना वॉच टाइम, उसके बाद आपके पर 1000 व्यूज पे आपको कैश मिलने लगता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होने लगता है आपके अकाउंट में, है कि नहीं? तो ये आपके एक सर्विसेज ही है। फिर आप लोग जो सर्विसेज ले रहे हैं बहुत सारे ऑनलाइन शॉप्स के, ठीक है, अब तो आप हॉस्पिटल से यहीं घर पे बैठ करके, और चाहे लखनऊ हो कहीं भी हो, आप बुक कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, है कि नहीं? कहीं से भी जो है आपको ट्रीटमेंट कराना है, ऑनलाइन आप जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। डॉक्टर्स का जो सजेशन या एडवाइस, मेनी डॉक्टर्स दे आर एडवाइसिंग ऑनलाइन, होता है, मेडिकल ऐप है बहुत सारे, ठीक है, वो डॉक्टर्स ही जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन उठा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं? सो वी हैव फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन टर्सरी सेक्टर, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारा टर्सरी सेक्टर का है। अभी जो हमने शेयर की बात की, तो फिर उसके बाद क्या है कि बहुत सारे रीजंस आपके जो थे, दैट वी हैव डिस्कस्ड, डिमांड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस केम, है कि नहीं? बिकॉज पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन देयर चिल्ड्रन, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल सर्विसेज है, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़ गई, पुलिस स्टेशन है ना, देयर आर मेनी थिंग्स, और बहुत सारे हमारे बिजनेस सेक्टर, हमारा जो बिजनेस सेक्टर है, पूरे हमारे ट्रेडर्स, ठीक है, दे आर सप्लाइंग कमोडिटीज, जैसे आपका ये जितने भी आपके ग्रोसरी शॉप्स हैं, दे आर सप्लाइंग देयर सर्विसेज, है ना। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रेलवे इज कंट्रीब्यूटिंग गुड सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट, है कि नहीं?
देयर इज नेटवर्क ऑफ रेलवे, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, हमारे वाटर वेज के थ्रू, ठीक है, ये सब हमारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं. तो ऑल दीज सेक्टर्स दे आर प्रोवाइडिंग अस such type of things. Okay, so we can say that it is a very important